देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1 ବଜେଟ୍ 2022-23 ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଶସ୍ତା କ'ଣ ମହଙ୍ଗା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କାଲି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେହିପରି କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବ। ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଜେଟ୍ ପରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। କଟା ଓ ପଲିସ ହୋଇଥିବା ହୀରା ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କଟାଯାଇଛି। ପଲିସ ହୀରା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ଶସ୍ତା, କପଡ଼ା ଶସ୍ତା। ହୀରା ଗହଣା, ରତ୍ନପଥର, ଷ୍ଟିଲ୍, ଇମିଟେସନ ଗହଣା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ, ମେସିନ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଚମଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ମେସିନ୍, ଔଷଧ ଆଦି ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଦେଶୀ ଛତା ମହଙ୍ଗା ହେବ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଇବା ତେଲ, ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 2 ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 1,04,278 କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2022ରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 1,04,278 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ପାଇଁ 63,449.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ 40,828 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ 1 କ୍ଲାସ୍ 1 ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଇ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 12 ବଦଳରେ 200 ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଏହାକୁ ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଟିଭି ଓ ରେଡିଓ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ବଜେଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାମାରୀ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରିବେ। ଏନେଇ କାଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇଆଇଟି ଯୋଗାଇ ଦେବ। 23ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିବ। ନିମ୍ହାନ୍ସ ଏହାର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ଯୁବକ, ମହିଳା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ବୋର୍ଡର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର 10ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକକ ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଓ 8ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସମେତ ଆବେଦନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡର ନିଜସ୍ୱ ୱେବସାଇଟ୍ www.bscodisha.ac.in କିମ୍ବା www.bscodisha.nic.inରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିନା ଜରିମାନାରେ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଜରିମାନା ସହ ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଦେୟ ବିନା ଜରିମାନାର 10ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇଁ 1200 ଟଙ୍କା ଓ 8ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଜରିମାନା ସହ ଏହି ଦେୟ 10ମ ଓ 8ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 1400 ଟଙ୍କା ଓ 800 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 10ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 8ଟାରୁ 10:30 ଓ 8ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ 8ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା 2 ଦିନ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, ହେବ କୁଆପଥର ମାଳ। ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 4 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ରୁ 4 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟା ଭିତରେ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
नंबर 6 एमएसपी बाबदरे चाषी को मिल 2.3 लाख कोटी। चाष और चाषी को प्रोत्साहित करने केंद्र बजेट 2022-23 रे प्रयास करा जायछि। प्राथमिक सूचना अनुसार एबेठारु देश में रासायनिक मुक्त चाष को प्रोत्साहित कर चाषी मान 2.3 लाख कोटी टंकार एमएसपी आकार में दिज्व। फसल निरीक्षण रक्षणाबेक्षण ड्रोन व्यवहार करा जमीर डिजिटालकरण मूल्यांकन ड्रोन द्वारा कराजिबो। यह बाद ड्रोन द्वारा कीटनाशक प्रयोग कराजिबार व्यवस्था हेबो। नाबार्ड जरिए कृषि और ग्रामांचल में स्टार्टअप पई आर्थिक सहायता दिज्व। चाषी मान वैषयिक ज्ञानकौशल तालीम दिज्व। चाषी को हाईटेक और डिजिटल सेवा जोगई देबा पई पीपीपी मोड रे विभिन्न योजना आरंभ कराजिबो। एथिरे सरकारी रिसर्च और प्रतिष्ठान भूमिका को मध्य प्राधान्य दिज्व। घरोई तेल बीज उत्पादन को प्रोत्साहित कराई यार आमदानी को ह्रास कराजिबो। समग्र देश में केमिकल हीन प्राकृतिक फार्म आरंभ कराजिबो। प्रथम पर्यायर गंगा नदी कूड़ू 5 किलोमीटर मध्य चाषी जमी पर स्वतंत्र कॉरिडोर तैयारी हेबो। जमी संस्कार पर वन नेशन वन पंजीकरण व्यवस्था हेबो। ड्रोन शक्ति जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित कराजिबो। नंबर 7 पुणी अपरिवर्तित रहिला आयकर टिकस स्लैब। जानतु पूरा हिसाब। पुणी थे बजेट उपस्थापन बेले टिकस स्लैब को अपरिवर्तित रखिंट केंद्र सरकार। आयकर स्लैब टिकस परिमाण वार्षिक आय 5 लाख जाए 5 लाख रु 7.5 लाख जाए 10% टिकस, 7.5 लाख रु 10 लाख जाए 15%, 10 लाख रु 12.5 लाख टंका जाए 20% टिकस, 12.5 लाख रु 15 लाख इनकम थिले 25% टिकस, 15 लाख रु अधिक थिले 30% टिकस देवाको हेबो। तेबे आईटी रिटर्न रे थिबा त्रुटि को सुधारिबाको 2 वर्ष मोहलत दिया जाइछि। 2 वर्ष मध्य स्थानीय आयकर रिटर्न दाखल करिपारिबे टिकसदाता। आयकर दाखल रे दिव्यांग को रिहाती मिलिबो बोली घोषणा करा जाइछि। सेहीपरि एनपीएस पई राज्य सरकारी कर्मचारी ठारू कटिबो 14%, कॉर्पोरेट सोसाइटी टैक्स 18% रु कमी 15% करा जाइछि। नंबर 8 ओडिशा हाईकोर्ट रे नुआ विचारपति हेबे 4 आईनजीवी। ओडिशा हाईकोर्ट रो विचारपति भावे आईनजीवी भी नरसिंह, संजय कुमार मिश्र, बिरजा प्रसन्न शतपथी और श्री रमण मोराहरी ओरफ एमएस रमण को नियुक्ति मिलवाक जाउछि। सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम ए 4 आईनजीवी ना ओडिशा हाईकोर्ट रो विचारपति भावे नियुक्ति पई सुपारिश करिसंती। ए 4 आईनजीवी नियुक्ति संपर्कित प्रस्ताव को सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम बैठक में ग्रहण कराजिबो सहित एने सुपारिश करा जाइछि। नंबर 2 बजेट रे रेड विभाग पई 1.4 लाख कोटी। नुआ बजेट रे रेड विभाग पई 1,40,367 कोटी टंकार व्यवहार कर जाइछि। यह गत थरर संशोधित व्यवहार ठारू प्राय 20,311 कोटी अधिक। आसंता 3 वर्ष रे प्राय 400 वंदे भारत ट्रेन निर्माण करने को अर्थमंत्री घोषणा करिसंती। रेल लाइन रो नवीकरण पई 13,335 कोटी टंकार व्यवहार कर जाइथिया बेले दोहरीकरण पई 12,108 कोटी रो व्यवहार कर जाइछि। रेड विभाग पई अर्थमंत्री करिथिबा घोषणा को केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वागत करिसंती। नंबर 10 प्रतिरक्षा पई 3.85 लाख कोटी व्यवहार। एथरर प्रतिरक्षा बजेट रे प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरशीलता उपर सर्वाधिक गुरुत्व दि जाइछि। निजर बजेट अभिभाषण में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसंती जे प्रतिरक्षा विभाग पुंजी व्यय अर्थात विभिन्न उपकरण, अस्त्रशस्त्र, मेसीन खरीद इत्यादि पई थिबा व्यवहार प्राय 68% देश भितर खरीद करा जिवो। एथर प्रतिरक्षा क्षेत्र पई मोट 3,85,370 कोटी व्यवहार करा जाइछि। एणु बजेट व्यवहार को देखिले देशर प्रतिरक्षा बजेट रे 11% वृद्धि करा जाइछि। 2020-21 रे देशर प्रतिरक्षा व्यय 3,40,000 कोटी टंका थिला। देशर प्रतिरक्षा बजेट बढ़ुथिले भी जीडीपी रे यार अनुपात अन्य प्रमुख राष्ट्र तुलना रे कम रहिछि। नंबर 11 5G स्पेक्ट्रम पई आह्वान। सबु गाँव को जीव ऑप्टिकल फाइबर। सबु गाँव को जीव ऑप्टिकल फाइबर। भारत नेट प्रोजेक्ट जरिए 2025 सुधा सबु गाँव को ऑप्टिकल फाइबर बिछा जीव। 2022-23 रे 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पई आह्वान करा जीवो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन रे परिवर्तन करा जीवो बोली काली संसद रे साधारण बजेट उपस्थापन करी घोषणा करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। सेहीपरि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। एथिपई पुराणा कालिया 1400 आईन को उच्छेद करा जाइछि। ई वेहिकल प्रोत्साहन पई बैटरी शॉपिंग पॉलिसी आसीबो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन रे परिवर्तन करा जीवो। प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन पई घरोई कंपनी को प्रोत्साहित करा जीवो। 68% प्रतिरक्षा सामग्री लोकल मार्केट रो किणा जीवको निष्पत्ति होईछि। सेहीबडी 2030 सुधा 280 मेगावाट सोलार एनर्जी उत्पादन लक्ष्य रखा जाइछि। सोलार एनर्जी शिल्प पई चलित वर्ष 19,500 कोटी व्यवहार कर जाइथिबा अर्थमंत्री सूचना दैछंती। नंबर 12
भारतीय नागरिकों को मिलिबो ई पासपोर्ट। बजेट अधिवेशन में अर्थमंत्री घोषणा करिसेंति जे खूब शीघ्र भारतर नागरिक मानक विदेश भ्रमण पर ई पासपोर्ट जोगई दियाजिबो। ई पासपोर्ट सहित आगु विदेश भ्रमण सहज और द्रुत हेबो बोली कहिसेंति अर्थमंत्री। नागरिकों सुविधा को दृष्टि रे रखी ई पदक्षेप निया जाइछि बोली निर्मला सीतारमण कहिसेंति। साधारण पासपोर्ट बड़ी काम करुवा ई पासपोर्ट को चलित वर्ष भारतीय नागरिकों को दियाजिबो, जोथिरे उन्नत सुरक्षा वैशिष्ट्य सहित इलेक्ट्रोनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप लागिथिबो। ई चिप रे आवेदनकारी व्यक्तिगत सूचना गच्छित हेबो। जदि केही चिप को व्यवहार करी पासपोर्टधारी जड़ित सूचना चोरी करने को चेष्टा करे तेबे संगे संगे अलर्ट करेइबो। पासपोर्टर पछभाग में रखा जाइथिबा ई चिप रे 64 किलोबाइट स्टोरेज स्पेस रहिबो एवं यह एक एम्बेडेड होइथिबा एंटेना सहित आसीबो। प्रथमे चिप 30 अंतर्जातीय यात्रार तथ्य रखिबाकु सक्षम हेबो। नंबर 13 आरबीआई आनिबो डिजिटल करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु देश में डिजिटल टंका प्रचलन कराजिबो। ब्लॉकचेन और अन्य प्रकार टेक्नोलोजी व्यवहार करी यह कराजिबो। काली लोकसभा रे निजर बजेट अभिभाषण में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए संपर्क में घोषणा करिसेंति। 2022-23 आर्थिक वर्ष आरंभ में रिजर्व बैंक डिजिटल टंका आरंभ करिबो। यह अर्थनैतिक कार्यकलाप को वृद्धि करिबारे सहायक हेबो बोली केंद्र अर्थमंत्री कहिसेंति। पूर्वरु रिजर्व बैंक पक्षरु मध्य ए संपर्क में संकेत दिया जाइथिला। सरकारी विभाग स्तर में अर्थ नेणदेण में हेउथिबा विडंब को कम करने एक ऑनलाइन बिल पेमेंट सिस्टम आरंभ कराजिबो। एहाकु सबु केंद्र सरकारी विभाग व्यवहार करि परिबे। अन्य पक्षरे वर्चुअल डिजिटल आसेट रु आय ट्रांसफर उपरे 30% टिकस लागिबो बोली अर्थमंत्री घोषणा करिसेंति। एही आय संपर्क में कोनोसी रिहाती दियाजिबो नाही। नंबर 14 संपूर्ण रूपे डिजिटल हेबो डाकघर। महामारी समय द्वितीय थर केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 बजेट उपस्थापन करिसेंति। बजेट उपस्थापन करी अर्थमंत्री कहिसेंति डाकघर डिजिटल सेवा पर गुरुत्व दियाजिबो। डाकघर संपूर्ण रूपे डिजिटल हेबो। अर्थमंत्री कहिसेंति 1.5 लाख डाकघर रे 100% कोर बैंकिंग प्रणाली पर्यायभुक्त करने को निष्पत्ति निया जाइछि। डाकघर एणिकी एटीएम रहिबो। यह व्यतीत नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एटीएम माध्यम रे अकाउंट रे पहुंचीबो। डाकघर खाता बैंकिंग खाता मध्य टंका ऑनलाइन माध्यम रे पठा जाई पारिबो। एबडी निष्पत्ति द्वारा वरिष्ठ नागरिक और कृषक माने बेस उपकृत हेबे। फଳରେ वरिष्ठ नागरिक बैंक रे धाड़ी रे ठिया हेबाकू पड़िबो नाही। एसो अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी पेंशन पोस्टल माध्यम रे आस्थिबरु सेमाने पोस्टल खातारु बैंक खाता को सीधा सड़क स्थानांतर करि परिबे। नंबर 15 केंद्र बजेट को नहीं नाखुश नवीन। केंद्र बजेट को नहीं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नाखुश होइछंती। मुख्यमंत्री कहिछंती गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में व्यवहार ह्रास कर जाइछि। कृषि और कृषकों विकास उच्च शिक्षा ग्राम्य उन्नयन में व्यवहार ह्रास होइछि। महामारी बेड़े व्यवहार ह्रास विकास उपरे प्रभाव पकेइबो। मनरेगा रे व्यवहार ह्रास जोगु गरीब लोके प्रभावित हेबे बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। मुख्यमंत्री कहिछंती बजेट रे मध्यवित्त लोकंक पई विशेष किछि नाही। बजेट रे दरदाम नियंत्रण पई पदक्षेप निया जाई नाही। एलपीजी सब्सिडी कमिथिबारु महिला गृह अर्थनीति प्रभावित हेबो। ग्राम्य गृह योजना रे ओडिशा को अवहेला आमको व्यथित करिछि बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। अन्य पक्षरे मुख्यमंत्री टेक्नोलोजी और भित्तिभूमि उपरे फोकस को नहीं प्रशंसा करिछंती। महामारी समय शिक्षा और स्वास्थ्य विकास रे सहायक हेबो। नंबर 16 युव मध्यम वर्ग दलित गरीब बजेट्रु लाभान्वित हेबे कहिले मोदी। 2022-23 आर्थिक वर्ष पर बजेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करिसेंति। एही बजेट गरीब कल्याणकारी बोली मोदी कहिसेंति। विशेषकर अधिकरु अधिक निवेश भित्तिभूमि और नियुक्ति संभावना को बजेट रे गुरुत्व दिया जाइछि। एही बजेट प्रगतिशील एवं जनहितकर। विगत 100 वर्ष मध्य भयंकर विपर्यय कोविड महामारी काल रे यह सबुठारु सशक्त बजेट एवं यह विकास को अधिक त्वरान्वित करबा नै मोदी आशा व्यक्त करिसेंति। देशर अर्थनीति को सशक्त करने सह साधारण लोकों पई एही बजेट अनेक सुजोग सृष्टि करिवो। सेहीपरि अधिकरु अधिक भित्तिभूमि द्रुत अभिवृद्धि अधिक निवेश एवं अधिक नियुक्ति क्षेत्र सृष्टि हेबारे बाट फिटिबो बोली मोदी कहिसेंति। सेहीपरि सबुज नियुक्ति क्षेत्र में मध्य एही बजेट सहायक हेबो। बजेट तत्काल आवश्यकता को समाधान करिवार क्षमता बहन करुछि। युव मध्यम वर्ग दलित गरीब बजेट्रु लाभान्वित हेबे। नंबर 17 कॉलेज आसिबे सबु अध्यापक किंतु ऑनलाइन रे हेबो पाठपढ़ा। राज्यर समस्त विश्वविद्यालय कॉलेज रे 100% कर्मचारी और अध्यापकों उपस्थान पर राज्य उच्च शिक्षा विभाग निर्देश जारी करिछि। तेबे एबे कॉलेज और विश्वविद्यालय रे केवल ऑनलाइन रे पाठपढ़ा करबाकू कहिसंती। राज्य उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्र काली उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे थिबा समस्त विश्वविद्यालय कुलपति सबु सरकारी और बेसरकारी डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल मानकू चिठी लिखि फेब्रुआरी 1 रु कोविड गाइडलाइन को कड़ाकड़ी पालन करी 100% कर्मचारी और अध्यापकों को नहीं कॉलेज और विश्वविद्यालय को कार्यक्षम करने को निर्देश देइछंती। अध्यापक माने निज निज शिक्षानुष्ठान ऑनलाइन रे निश्चित क्लास करेइबे। परीक्षा रे कॉलेज और विश्वविद्यालय रे ऑफलाइन रे क्लास करने को सरकार अनुमति देई नाहंती। नंबर 18 पुंजीपति बजेट भाषण पढ़ुथिले अर्थमंत्री कहिले चिदंबरम।
काली संसद में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थापन करिथिबा बजेट को पूर्वतन केंद्र अर्थमंत्री पी चिदंबरम कड़ा समालोचना करिसेंती। से कहिसेंती जे कालीर बजेट भाषण इतिहास रे सबठारु पुंजीपति जनित भाषण। आज पर्यंत कौनसे अर्थमंत्री बजेट भाषण उपस्थापन करिबारे यह अत्यंत व्यतिक्रम एवं पुंजीपति उद्दिष्ट बोली चिदंबरम कहिसेंती। कालीर सीतारमणक भाषण रे केवल 2 थर गरीब शब्दर व्यवहार होईछि बोली चिदंबरम कहिसेंती। बजेट पुस्तिकार पारा 6 रे केवल 2 थर गरीब शब्द रहिछि। ए देश में गरीबों को मन पकईथिबारु आमे अर्थमंत्री को धन्यवाद जणाउछु बोली तात्सल्य करी कहिसेंती चिदंबरम। लोके एही पुंजीपति सपक्षवादी बजेट को प्रत्याख्यान करिवे बोली से कहिसेंती। चलित बजेट रे लोकमानंकु बोका बना जाईछि। सेहीपरि क्रिप्टो करेन्सी बाबदरे आरबीआई बदଳରେ अर्थमंत्री परोक्षरे एहाकु आईनसम्मत भावे घोषणा करिसेंती। तेबे एथिरे देशर 99.99% लोकंकर कौनसी स्वार्थ हेबो नाही। नंबर 19 3 वर्ष हेब 400 नुआ वंदे भारत एक्सप्रेस कार्यक्षम। देश में सुदृढ़ हेब गमनागमन सुविधा। गमनागमन क्षेत्र को नहीं आरंभ हेब पीएम गतिशक्ति। आकाशपथ जलपथ रेलपथ सड़क पथरे यातायात पर पीएम गतिशक्ति योजना आरंभ कर योजना द्वारा यात्री माने यात्रा करिवार सुविधा पाई परिबे। मात्र 3 वर्ष में 400 नुआ वंदे भारत एक्सप्रेस कार्यक्षम करा नहीं कहुଯାଇଛି। तासह 2022-23 मध्य 25,000 किलोमीटर हाईवे निर्माण करा लक्ष्य रखाଯାଇଛି, जहाद्वारा यातायात में सुविधा हो पारिबो। नंबर 20 बजेट पूर्व कमिला गैस दर। बजेट पूर्व देशर प्रमुख तैल कंपनी कमर्शियल गैस दर को कमईछंती। देशर सबुठ बड़ तेल कंपनी आईओसी 19 केजी कमर्शियल गैस सिलिंडर दाम को 91 टंका 50 पैसा कमई देइछि। एबे दिल्ली रे नुआ गैस रेट 1907 टंका रे पहुंची। हेले अण सब्सिडी गैस सिलिंडर दाम रे कौनसी परिवर्तन होई नाही। गत मासरे कमर्शियल गैस दर 102 टंका 50 पैसा कमी थिला। कमर्शियल गैस मुख्यतः होटेल रेस्टोरेंट आदि रे व्यवहार हेउथिबारु एपरि रेट खसिबा परे बाहरे खाइबा पीवा सस्ता होई पारे बोली आलोचना हेउछि। नंबर 21 द्वितीय डोजर 3 मास होइथिले बूस्टर डोज। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पर नियोजित होइथिबा समस्त कर्मचारी को बूस्टर डोज टीका दियाजिबो बोली राज्य निर्वाचन कमिशनर कहिसंती। समस्त कर्मचारी को कोविड योद्धा घोषणा कराजिबा सह निर्वाचन पूर्व ए बूस्टर डोज दियाजिबो। जो कर्मचारी द्वितीय डोज टीका नेबार 3 मास बा 90 दिन पूर्ण होइथिबो सेमानकु बूस्टर डोज दियाजिबो। एनी स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु राज्य सरकार को जणा जाईछि। एपरे समस्त जिलापाल महानगर निगम कमिशनर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी मानक आवश्यक पदक्षेप नेबाकु निर्देश दिया जाईछि। नंबर 22 कंधमाल जिले में लक्ष हेक्टर जमी हेब कॉफी चाष। पुणी महकिबाकु जाउछि कंधमाल कॉफी। जिलार 6टी ब्लॉक रे मोट 1,09,395 हेक्टर जमी रे कॉफी चाष हेब बोली कॉफी बोर्ड निष्पत्ति नेइछि। जिलार राइकिया टिकाबाली दारिंगबाड़ी घू उदयगिरी फिरिंगिया एवं क नुआगाँ भली 6टी ब्लॉक कॉफी चाष पई अनुकूल एवं एई 6टी ब्लॉक रे नुआ करी कॉफी चाष आरंभ करने कॉफी बोर्ड सर्वे करिछि। एथिपई कंधमाल जिला प्रशासन कॉफी बोर्ड एवं टीडीसीसी मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। राइकिया ब्लॉक 23,800 हेक्टर, टिकाबाली ब्लॉक 25,900, दारिंगबाड़ी ब्लॉक 76,900, घू उदयगिरी ब्लॉक 13,700, फिरिंगिया ब्लॉक 63,200 एवं क नुआगाँ ब्लॉक 39,600 हेक्टर जमी चिन्हट कर कॉफी चाष पई कंधमाल माटी पाणीपाग जलवायु संपूर्ण अनुकूल बोली कॉफी बोर्ड प्राक निरीक्षण जना पड़ी। नंबर 23 खसुची संक्रमण। राज्य में चिन्हट हेले 3,086 पॉजिटिव। गत 24 घंटे राज्य में 3,086 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। खोर्धारू सर्वाधिक 652 जन, अनुगुळरू 82, बालेश्वररू 76, बरगड़रू 36, भद्रकरू 77, बलांगीररू 76, बौद्धरू 16, कटकरू 325, देवगढ़रू 69, ढेंकानालरू 71, गजपतिरू 63, गंजामरू 46, जगतसिंहपुररू 74, जाजपुररू 149, झारसुगुड़ारू 69, कलाहांडीरू 77, कंधमालरू 24, केन्द्रापड़ारू 49, केन्दुझररू 39, कोरापुटरू 44, मालकानगिरीरू 30, मयूरभंजरू 109, नवरंगपुररू 84, नयगड़रू 110, नुआपड़ारू 106, पुरीरू 42, रायगड़रू 40, संबलपुररू 75, सोनपुररू 35, सुंदरगढ़रू 216 और स्टेटपुलरू 125 जन चिन्हट होइछंती। नंबर 24 कांग्रेस स्टार प्रचारक तालिकार गुलाम नबी और सचिन पायलट। यूपी रे द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर कांग्रेस पक्षर स्टार प्रचारक तालिका घोषणा कर घोषणा होइतिबा 30 जन तालिकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भाद्रा, गुलाम नबी आजाद एवं सचिन पायलट अछंती। सेहिपरि अन्य नेतांक मध्य सलमान खुर्शीद, भूपिंदर सिंह होदा, दीपेंद्र होदा, राज बब्बर, राजीव शुक्ला, अशोक गहलोत, वर्षा गायकवाड़, कन्हैया कुमार एवं प्रीनीति सिंधे प्रमुख नाम रही। द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर प्रार्थीपत्र दाखलर शेष तारीख जनवरी 28 तारीख थिला। फेब्रुआरी 10 रु उत्तर प्रदेश निर्वाचन आरंभ हेबो। एथिरे 7टी पर्याय मतदान हेबो। मार्च 10 रे गणति हेबो। नंबर 25
कन्हैया कुमार को काड़ीमाड़ कांग्रेस कहला एसिड यूपी रे निर्वाचन ताती उष्म थिबा बेले जेएनयू पूर्वतन छात्र तथा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार उपर को काड़ीमाड़ होईछि। लखनऊर कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार तांको उपर को काड़ीमाड़ होईछि। तेबे कांग्रेस नेता एहाकु काड़ी नुहे बरं एसिड बोली अभियोग आनिछंती। उत्तर प्रदेश निर्वाचन प्रचार पई कन्हैया कुमार आसीथिबा बेले तांको उपर को आक्रमण होईछि। कन्हैया कुमार उपर को अभियुक्त एसिड फिंगिथिबा उद्यम करी विफल होईछंती बोली कांग्रेस नेता कहिछंती। तेबे किछि बुंदा कन्हैया कुमार पाखरे थिबा 3-4 जण युवकଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। कांग्रेस कर्मी माने संपृक्त अभियुक्तଙ୍କୁ काबू କରିଥିଲା बेले तांको विषय किसी तथ्य खुलासा करिनाहंती। लखनऊ रे कांग्रेस पई कन्हैया कुमार घर को घर बोली कैंपेन करुछंती। दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करी भोट मागुछंती। नंबर 26 झारखंड रे बेआईन कोयला खनन बेले दुर्घटना 6 मृत। झारखंड धनबाद रे सोमवार राति रे बेआईन कोयला खनन समय बड़ धरणर दुर्घटना घटी। सूचना अनुसार 3टी खोला कोयला खनि रे एक समय 3टी अतड़ा खसी पड़ू 10-12 जन श्रमिक चापी हो रही जाइछंती। तेबे केते जन लोक अतड़ा तले रहिछंती तार सूचना सठिक भावे मिली पारि नाही। वर्तमान सुधा 6 जन श्रमिकଙ୍କ मृत्यु होइतिबा जणा पड़िछि, किंतु 5 जनଙ୍କ मृतदेह मिली पारिछि। कुहा जाउछि गोटिए शवको कोयला माफिया माने निज सहित नहीं जाइछंती। अन्य पक्षरे मृतकों संख्या आहरी बढ़ी पारे बोली ग्रामवासी माने कहिछंती। नंबर 27 आज जाजपुर खोलिबा समस्त धर्मानुष्ठान। आज जाजपुर जिलार समस्त धर्मानुष्ठान खोलिबा को जिला प्रशासन निष्पत्ति नेइछि। कोविड संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु गत जनवरी 13 तारिख ठारू जिलार समस्त धर्मानुष्ठान और पार्क गुड़ी को अनिर्दिष्ट समय पर्यंत बंद रखिबा को जाजपुर जिलापाल चक्रवर्ती सिंह राठौर निर्देश देइथिले। तेबे एबे संक्रमण कमिथिबा बेले धर्मीय भावना को गुरुत्व देई धर्मानुष्ठान गुड़ी को खोलाजिबा सह पूजा और दर्शन करने को अनुमति प्रदान करा जाइछि, जहाँकि एही निर्देश फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत बड़बतर रहिबो। तेबे पार्क खोलाजिबा कि नाही से नै निष्पत्ति होई नाही। नंबर 28 बिना दर्शक भारत इंडीज दिनिकिया श्रृंखला। आसंता 6-11 तारिख पर्यंत भारत और वेस्टइंडीज मध्य अहमदाबाद में खेल जावा 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया श्रृंखला दर्शकों को अनुमति मिलबनी। महामारी कोविड-19 जोगु इस श्रृंखला बंद द्वारा खेल बोली आयोजक गुजरात क्रिकेट संघ मंगलवार कहिछि। समस्त दिनिकिया अहमदाबाद स्थित मोटेरार नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेल जीवो। आमे वेस्टइंडीज भारत गस्त दिनिकिया श्रृंखला आयोजन करुछु। 6 तारिख रे खेल जीवाकु थिबा प्रथम मैच भारतर 1000तम दिनिकिया होइथिबारु यह ऐतिहासिक मैच। विश्वर प्रथम दल भाव भारत ई माइलखंड रे पहुंचिछि। तेबे दिनिकिया परे 2 दल 3 मैच विशिष्ट T20 श्रृंखला कोलकाता रे खेलिबे। ई श्रृंखला लागि 75% दर्शकों को स्टेडियम प्रवेश पई पश्चिमबंग सरकार अनुमति दैछंती। नंबर 29 क्रीड़ा बजेट रे बंपर वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 वर्ष पर साधारण बजेट उपस्थापन कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा रे विभिन्न सेक्टर पर बजेट जारी करिसंती। बजेट उपस्थापन बेले अर्थमंत्री क्रीड़ा क्षेत्र पर कौन से आनुष्ठानिक घोषणा करना हेले डिटेल्स आसिबा परे जना पड़ी जे एथर क्रीड़ा क्षेत्र में 300 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट वृद्धि कर 2021-22 वर्ष पर क्रीड़ा बजेट 2757.02 कोटी टंका थिला। हेले 2022-23 वर्ष में क्रीड़ा बजेट 3062.60 कोटी टंका को वृद्धि पाई। अर्थात एथर क्रीड़ा बजेट रे मोट 305.58 कोटी टंकार वृद्धि कर चलित वर्ष राज्यगोष्ठी क्रीड़ा एशियन गेम्स पई एही टंका विनियोग करा जिवो। एछडा अन्य क्रीड़ा क्षेत्रर विकास पई मध्य अर्थ विनियोग करा जिवो। गत वर्ष जातीय यूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम पई मध्य बजेट वृद्धि कर गत वर्ष एही क्षेत्र रे 108 कोटी टंका खर्च कर बेले चलित थर यह 138 कोटी टंका को वृद्धि कर नंबर 30 जारी है आईपीएल नीलाम पई खेलाड़ी तालिका। इंडियन प्रीमियर लीग पई खेलाड़ी नीलाम तालिका जारी होईछि। आईपीएल 2022 रे मोट 590 खेलाड़ी उपरे नीलाम डका जिवो। आईपीएल 15 संस्करण को भव्य करने उद्देश्य रे बीसीसीआई मेगा एक्शन आयोजन करिवो। एथर आईपीएल नीलाम 2 दिन चलिवो। फेब्रुआरी 12-13 तारिख रे बेंगलुरु रे खेलाड़ी नीलाम हेबो। नीलाम पई 2 कोटी टंका सर्वाधिक रिजर्व दर धार्य कर जाइछि। मोट 48 जन खेलाड़ी ए ब्राकेट रे निजको शामिल करिसंती। अन्य पक्षरे 20 खेलाड़ी 1.5 कोटी टंकार ब्राकेट रे रहिसंती। 34 जन खेलाड़ी 1 कोटी रिजर्व प्राइस रे अछंती। बीसीसीआई आईपीएल एक्शन पई 10 मार्क खेलाड़ी ना घोषणा करिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।